everyone, this side Preet Kamal. I'm a lecturer at Bhushan Polytechnic College, Jalandhar. Today I'm here to share with you the subject details of PLC, that is Programmable Logic Controller. But before starting with the subject details, let's discuss an important issue, that is COVID-19. We should take some precautions related to this COVID-19 situation, that is we should wash our hands regularly, we should use sanitizer, mask, and along with that maintain the social distancing rules so that we could come out of this COVID-19 situation under the mission Fateh that is run by the Punjab government. Okay, so let's quickly move on towards the today's topic, and that is related to PLCs. As in the previous lecture we were discussing about the timers in the PLC, and we have discussed about the basic timers, that the timers are of two types: timer on delay timers and off delay timers, and along with that there are retentive and non-retentive timers also. And along with that we have discussed about the status bits, that the address format of the timer, that how and what kind of things that are basically utilized in the timers. In today's lecture we will discuss about the main timers that we utilize in our ladder diagram programming. So let's discuss. First of all, if we talk about the timer instructions, then the first instruction, or on the basis of the timers, we divided into three types. Three classifications are there of the timers that are utilized in the PLC. The first timer is the timer on delay, the second one is the timer off delay, and the third one is the retentive timer. So on delay timer means that kind of timers that are utilized during the on time. That means whenever the timer starts, then your thing or the machine that you are running with the help of that timer, that will work, that will start working, right? Or the timer will work in the on condition. So this is the instruction symbol of on timer or timer on delay. This timers, we know that the timers are utilized for the delay purposes in the PLCs, that if we need to delay some kind of instruction or some kind of operation of any machine, then we generally use this on delay timer. So in the delay timers, if you can see the instruction symbol of all the timers, then we are having in all the timers we are having the same kind of a data. The same kind of data means, first of all, T on. This is the symbol, that is the short form that is utilized to represent that what kind of instruction symbol it is. So T on means the timer on delay, T off means the timer off delay, and RTO means the retentive timer on. राइट. सो टाइमर ऑन डिले we talk about, अगर हम टाइमर ऑन डिले की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे टाइमर का नाम आएगा कि कौन सा टाइमर हम PLCs के अंदर बहुत सारे टाइमर्स हैं हमारे पास, कौन सा वाला टाइमर जो है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल T410 जो है उसका टाइमर का नाम फॉर एग्जांपल हम वो यूज़ कर रहे हैं. देन व्हाट इज़ द टाइम बेस. जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइम बेस का मतलब है कि कितने पर्टिकुलर टाइम पीरियड का एक क्लॉक पल्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एंड बाय डिफ़ॉल्ट और इन जनरल जो हम लोग टाइम बेस यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू है 0.01, एंड यू कैन सी कि हर बार हमने 0.01 ही टाइम बेस जो है वो यूज़ किया है. Then about the preset value, that is the maximum value up to which your timer is to reach. So preset and time base, they will be multiplied with each other to get us know about how much time period, how much delay your machine will be having, right? So this is the value of preset. This is not fixed to 120. You can change it according to your requirement. You can enhance also, or increment also, or you can decrement it also, okay, according to whatever the machine whatever the kind of delay in the machine you want. When preset value is being set, that means the maximum value, then the accumulated value. So initially the accumulated value is 0. That means it will start from 0 and will reach up to 120. Then the output symbols, the output that we will be having here, they will be your enable and done bit, right? So here will be enable bit and done bit. What they will tell us, that they will tell us about the status bit. So let's discuss the logic table, then you will be more clear
किस तरह से आपका जो ऑन डिले टाइमर है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे है क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले है हमारी कंडीशन, इन टाइम सीक्वेंस हमारी कंडीशन जो है वो क्या है। एंड देन द सेकेंड पार्ट इज द स्टेटस बिट्स। तो जो स्टेटस बिट्स हैं उनका स्टेटस क्या होगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास दो कंडीशंस हैं। सबसे पहली है रंग कंडीशन। रंग मीन्स जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हम लोग लेटर प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं। देन इज द एक्यूमुलेटेड वैल्यू। एक्यूमुलेटेड वैल्यू मीन्स कि इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे एक्यूमुलेटेड वैल्यू की एग्जैक्ट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, क्या वो प्रीसेट वैल्यू तक पहुंच चुकी है या उससे कम है या ज़ीरो है या उससे ज़्यादा बढ़ चुकी है, व्हाट अबाउट दैट। तो वो एक्यूमुलेटेड वैल्यू के बारे में यहाँ पे हमें पता चलेगा। देन आफ्टर इज द स्टेटस बिट्स। स्टेटस बिट्स जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करी थी कि स्टेटस बिट्स मीन्स यार इनेबल बिट है, डन बिट है, टाइमिंग बिट है, राइट। तो रंग कंडीशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसिडर कि जो हमारी रंग कंडीशन है वो फॉल्स है। अगर इनिशियली हमारी रंग कंडीशन फॉल्स है तो हमारी एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो है वो क्या होगी, रीसेट। रीसेट मीन्स अभी उसने वर्क करना स्टार्ट नहीं किया है, अभी वो वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। तो इस टाइम के ऊपर आपकी इनेबल बिट भी ज़ीरो है, अभी तक टाइमर इनेबल नहीं किया गया है। डन बिट और टाइमिंग बिट जो है वो तो ऑब्वियसली बाद में वर्क करती है जब आपका टाइमर इनेबल हो जाता है उसके बाद, राइट। तो लेट्स से कि हमारी अब इनेबल बिट जो है वो ऑन कर दी हम लोगों ने। तो अगर इनेबल बिट जो है वो ऑन हो गई, जो टाइमर है आपका वो इनेबल हो गया, तो क्या होगा, आपकी रंग कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। अगर आपकी रंग कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आपकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो है अभी एक्यूमुलेटेड वैल्यू कहाँ पहुँची है, इट इज लेस देन प्रीसेट। तो अगर लेस देन प्रीसेट है तो आपकी टाइमिंग बिट भी 1 हो जाएगी। दैट मीन्स कि अभी एक्यूमुलेटेड वैल्यू बढ़ रही है, इट इज़ इंक्रीजिंग रेगुलरली, राइट। देन आफ्टर अगर रंग कंडीशन आपकी जो है फिर से अभी ट्रू ही चल रही है, इनेबल बिट भी ट्रू है और आपकी टाइमिंग बिट जो है वो अब 0 हो गई मीन्स, और डन बिट 1 हो गई। अगर डन बिट 1 हो जाती है, टाइमिंग बिट जो है आपकी 0 हो जाती है, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू है या तो वो ग्रेटर हो चुकी है प्रीसेट वैल्यू से या इक्वल हो चुकी है। दैट मीन्स जो हम लोगों ने एक्यूमुलेटेड वैल्यू को 0 से स्टार्ट किया था वो बढ़ते बढ़ते इंक्रीमेंट होते होते अब कहाँ पहुँच चुकी है, 120 तक पहुंच चुकी है। तो अगर वो 120 तक पहुंच चुकी है तो क्या होगा, आपकी टाइमिंग बिट जो है, जो शो कर रही थी कि एक्यूमुलेटेड वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, वो बिट 0 हो चुकी है। दैट मीन्स कि इंक्रीमेंट जो है आपका वो स्टॉप हो चुका है। और डन बिट जो है वो 1 हो चुकी है। दैट मीन्स कि आपका जो टाइमर है उसने वर्क करना बंद कर दिया है। मीन्स आपका टाइमर जो है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो रीच हो चुकी है, वो पहुंच चुका है मैक्सिमम वैल्यू पे। और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, प्रीसेट वैल्यू। तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू प्रीसेट वैल्यू बन चुकी है। सो दैट मीन्स आपका जो सर्किट है, आपका जो ऑन डिले टाइमर, जितने टाइम का आपने डिले डाला था उतने टाइम के लिए आपका जो मशीन है वो वर्क कर चुका है। जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते थे वो हो चुका है, उसमें जितना डिले आप डालना चाहते थे वो डिले जो है वो परफॉर्म हो चुका है। एंड आफ्टर दैट फॉर रीसेट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज़ दिस रीसेट पार्ट। मतलब इनेबल बिट को जो है वो हमें 0 करना पड़ेगा। मीन्स फोर्सफुली आपका टाइमर जो है वो ऑटोमेटिकली अपना प्रीसेट पे पहुंचने के बाद वो ऑटोमेटिकली बंद नहीं होगा। व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू डिसेबल दैट बिट। इनेबल बिट जो है उसको डिसेबल करना पड़ेगा या एक स्विच जो है उसको प्रेस करना पड़ेगा, स्विच ऑफ करना पड़ेगा या उसको इसकी वैल्यू को, एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो है उसको रीसेट करना पड़ेगा। तब ये जो रंग कंडीशन है आपकी वो फॉल्स होगी और उसके फॉल्स होने के बाद आपका जो टाइमर है वो वर्क करना स्टॉप कर देगा, बंद कर देगा। Then the timer of delay, how the timer of delay will work, it will work when the condition will be false। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइमर ऑफ डिले में क्या चीज़ है, टाइमर ऑफ डिले है, टाइमर जो है 411 उसका नंबर है, टाइम बेस है, प्रीसेट वैल्यू, एक्यूमुलेटेड वैल्यू एक्जैक्टली द सेम जैसे टाइमर ऑन डिले में। सिर्फ डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि स्टार्टिंग में अगर आपका अब लॉजिक टेबल यहाँ पे आप देख सकते हो वही सेम कंडीशन इन टाइम सीक्वेंस, स्टेटस बिट्स, दिस इज योर रंग कंडीशन, एक्यूमुलेटेड वैल्यू और द स्टेटस बिट्स जो भी हैं उनकी जो भी वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से आपकी होंगी। स्टार्टिंग में इनिशियली अगर वो फॉल्स है, टाइमर ऑफ डिले फॉल्स है, तो उसकी कोई भी एक्यूमुलेटेड वैल्यू नहीं है, कोई भी स्टेटस बिट्स की वैल्यूज़ नहीं है, वो अभी कोई वर्क नहीं परफॉर्म कर रहा है। अब जैसे ही उसकी वैल्यू ट्रू होगी, टाइमर ऑफ डिले की वैल्यू जैसे ही
रन कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, मतलब आप इनेबल करोगे, डन बिट 1 होगी, इनेबल बिट 1 होगी, तो आपका जो टाइमर ऑफ डिले है वो क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, ट्रू वे वो रीसेट हो जाएगा, राइट। तो क्योंकि वो ऑफ कंडीशन के अंदर वर्क करता है, लेकिन वो ऑफ कंडीशन भी कैसी होनी चाहिए, ट्रू टू फॉल्स। अगर आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू से फॉल्स हो रही है, मतलब पहले ट्रू होना ज़रूरी है ताकि वो रीसेट हो जाए, और उसके बाद अगर वो फॉल्स हो रही है, फॉल्स मतलब इनेबल बिट जो है वो 0 हो रही है, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपकी जो टाइमिंग बिट है वो 1 हो जाएगी, जो डन बिट है वो 1 हो जाएगी, और इन दोनों के 1 होने के साथ इसका मतलब क्या है कि आपका जो एक्यूमुलेटेड की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो चुकी है। और जैसे वो इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये कंडीशन जो रन कंडीशन है वो फॉल्स हो चुकी है इनिशियली टाइमर, क्योंकि ये चलेगा तभी जब ये कंडीशन ट्रू टू फॉल्स जाएगी, राइट। तो अभी एक्यूमुलेटर की वैल्यू जो है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो है वो बढ़नी स्टार्ट हो चुकी है, प्रीसेट से अभी कम है, टाइमिंग बिट और डन बिट जो है वो इनेबल हो चुकी है, इनेबल बिट जो है वो फॉल्स है, वो 0 है, ठीक है। इस टाइम पे आपका जो टाइमर ऑफ है वो वर्क करेगा, वो वर्क कर रहा है अपनी प्रीसेट वैल्यू तक, जो मैक्सिमम वैल्यू तक वो पहुंचना चाहिए उसको, वो पहुंचने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे, राइट। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है कि अब जब जैसे ही आपकी टाइमिंग बिट 0 हो जाएगी या आपकी डन बिट जो है वो 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो टाइमर है, जो ऑफ डिले टाइमर है, उसकी वैल्यू प्रीसेट तक पहुंच चुकी है। तो आपका जो ऑफ डिले का टाइमिंग है वो फिनिश हो चुका है, आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वहाँ तक एक्यूमुलेटेड वैल्यू पहुँच चुकी है, और आपका टाइमर जो है उसने ऑपरेशन अपना परफॉर्म कर लिया है, किस कंडीशन में, ऑफ कंडीशन के अंदर। तो ये टाइमर जो है वो ऑफ कंडीशन में वर्क कर रहा है। लास्ट वन इज़ द रिटेंटिव टाइमर। सो एज द नेम सजेस्ट, रिटेंटिव मीन्स जो अपनी वैल्यू को रिटेन कर सकता है। अब जैसे हम टाइमर ऑन डिले की बात करें तो इसमें अगर हमारे यहाँ पे कभी भी किसी टाइम पे अगर इनेबल बिट 0 हो जाती है, उसी टाइम पे वो टाइमर बंद हो जाएगा, और उसके बाद विल नॉट स्टार्ट जब तक आप दोबारा से इनेबल बिट को स्टार्ट नहीं करते। जो टाइमर ऑफ डिले है इसे आपको रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही अपनी एक्यूमुलेटेड वैल्यू तक पहुँच जाएगा ये ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। इसको अलग से फोर्सफुली जैसे हमने टी ऑन को किया था वैसे इसको करने की ज़रूरत नहीं है एक्सटर्नली, राइट। तो लेकिन जो RTO है, जो आपका रिटेंटिव टाइमर है, इस पर अगर आप देखेंगे ये रिटेंटिव टाइमर का नाम अलग जो आप यूज़ कर रहे हो, टाइम बेस सेम है, प्रीसेट सेम है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू बाकी सब कुछ सेम कंडीशंस के अंदर आपका वर्क कर रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे जब हम अपना ट्रुथ टेबल देखते हैं, तो ट्रुथ टेबल या लॉजिक टेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जो रन कंडीशन है इनिशियली अगर वो फॉल्स है तो सबकी वैल्यू जो है वो 0 0 है। नाउ जब रन कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है, तो कब ट्रू हो रही है, जब आपने इनेबल बिट को 1 किया, साथ में आपकी टाइमिंग बिट 1 होगी, दैट मीन्स कि आपका एक्यूमुलेटेड जो वैल्यू है वो अब बढ़नी शुरू हो गई है, प्रीसेट वैल्यू से अभी तक कम है लेकिन इट हैज़ स्टार्टेड इंक्रीमेंटिंग। अब फॉर एग्जांपल कि बीच में ही कहीं पे फॉल्स कंडीशन आ गई, कहीं पे स्विच ऑफ हो गया, आपका टाइमर बंद हो गया, तो क्या होगा, या इनेबल बिट बाय डिफ़ॉल्ट या बाय चांस 0 हो जाती है, तो क्या होगा, आपकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू अभी भी प्रीसेट वैल्यू तक ही है, और वो रन मोड से आपके प्रोग्राम मोड में आ जाएगा। आपका जो टाइमर है वो रन मोड से प्रोग्राम मोड में आ जाएगा जब आपकी बिट जो है वो ट्रू से फॉल्स में जाएगी उस टाइम पे, राइट। तो अब मान लो कि अगेन आपने क्या किया, जो फिर से दोबारा से इनेबल बिट जो है वो 1 हो गई, टाइमिंग बिट 1 हो गई, तो अगेन आपका जो रन कंडीशन है वो ट्रू हो चुका है। अगर वो फिर से ट्रू हो चुका है रन कंडीशन, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू है अभी लेस देन प्रीसेट वैल्यू था, तो वो वही वैल्यू जहाँ पे उसने यहाँ स्टॉप किया था फॉल्स वैल्यू की वजह से, वो वही उसी वैल्यू से दोबारा से स्टार्ट होगा, दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा, राइट। तो अभी फिर से अगर ये ट्रू वैल्यू आ रही है तो क्या होगा, यहाँ पे जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू है इनेबल बिट 1 है, टाइमिंग बिट जो है वो 0 हो चुकी है, दैट मीन्स आपका जो प्रीसेट वैल्यू तक पहुंचने का जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू का डिस्टेंस था वो कंप्लीट हो चुका है, टाइमिंग बिट जो है वो 0 हो चुकी है, डन बिट 1 हो चुकी है, दैट मीन्स टाइमर हैज़ डन, जो प्रीसेट वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू तक उसमें पहुंचना था वो पहुंच चुका है, राइट। तो दिस इज़ द कंडीशन जहाँ पे वो एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो है वो आपकी प्रीसेट वैल्यू तक पहुंच चुकी है, राइट। तो फिर से अगर वो फॉल्स होगी कंडीशन, तो
डन बिट चाहे 1 भी हो तो आपकी रन कंडीशन जो आपका एक्यूमुलेटेड वैल्यू है उस पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच चुकी है, राइट। और अगर आप फॉल्स है आफ्टर रीसेट के बाद अगर आप फॉल्स देखते हो तो फिर फॉल्स कंडीशन में फिर दोबारा से वही सेम चीज़ आ जाएगी जो स्टार्टिंग में थी। तो इसमें और इनमें सिर्फ डिफरेंस इतना है बेसिक कि आपकी ये जो रिटेंटिव टाइमर है अगर बीच में बाय मिस्टेक कहीं पे की वैल्यू जो है वो ट्रू से फॉल्स चली जाती है, वो रन मोड से प्रोग्राम मोड में चला जाता है बाय चांस बिकॉज ऑफ कोई भी मिसकंसेप्शन, बिकॉज ऑफ कोई भी प्रॉब्लम की वजह से, तो जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू है वो रीसेट नहीं होगी, वो शुरू से शुरू नहीं होगी बाकी कंडीशंस की तरह, बाकी टाइमर्स की तरह, बट कि वो एक्यूमुलेटेड वैल्यू है वो अपनी वैल्यू को रिटेन करके रखेगी, और फिर जब वो दोबारा से ट्रू होगी कंडीशन तो वो वहीं से दोबारा स्टार्ट होगी और वो लास्ट तक पहुंचेगी, मतलब अपनी प्रीसेट वैल्यू तक पहुंचेगी। तो जो ऑन डिले टाइमर है वो ऑन कंडीशन के अंदर वर्क करता है, जो ऑफ डिले टाइमर है वो ऑफ कंडीशन के अंदर वर्क करता है, जो रिटेंटिव टाइमर है वो ऑन कंडीशन में ही वर्क करता है, बट अगर बाई चांस ऑफ कंडीशन आ जाती है तो वो अपनी वैल्यू जो है उसको रिटेन कर लेता है। सो दिस वॉज the main things about the timer instructions, and this is the symbol, these are the symbols that you have to use in case of a ladder diagram programming जब हम लोगों ने करनी है, जब हमने उसमें कोई टाइमर डिले जो है वो प्रोवाइड करना है। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आप कोई लॉन्ग डिले, कोई लार्जर डिले डालना चाहते हो तो आप 2 टाइमर्स को इकट्ठा भी लगा सकते हो, 2 ऑन डिले टाइमर्स को या 2 ऑफ डिले टाइमर्स को कैस्केड में भी लगा सकते हो। तो दैट ऑप्शन इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द ladder diagram programming for a larger delays if needed in any case. Okay, so I hope this is all clear to you of today's topic, and if there will be any doubts I will be taking them in the live sessions. So do like and comment on my video so that I could come to know that you have gone through it thoroughly. Okay, so till then, take care, bye bye, thank you.